بعض اوقات محرومیاں اور ناکامیاں انسان کی زندگی میں خود داخل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری اپنی ناسمجھی اور نادانی کی پیدا کردہ بھی ہوتی ہیں۔ ناقص العقل انسان خود اپنے ہاتھوں بے سوچے سمجھے اپنی پرسکون زندگی کو بے سکون اور تلخ بنا لیتا ہے، اور تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس نے غلطیاں کی ہیں۔ جب کٹھن راستوں پر ٹھوکریں کھا کر بری طرح تھک جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ میرے بھائی کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی دکھوں سے عبارت ہے۔ اس کی داستان بیان کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہم ایسی جگہ کے بسنے والے ہیں جہاں برف پوش پہاڑوں کے اونچے اونچے سلسلے ہیں، خوبصورت وادیاں اور پرفضا مقامات ہیں، مگر زندگی اتنی آسان بھی نہیں۔ پھر بھی ہماری زندگی اتنی کٹھن نہیں تھی، کیونکہ پھلوں کے باغات اور وافر زمین ہمارے پاس تھی، جسے سال بھر کا گزارا بآسانی ہوتا تھا۔ میرے بھائی کا نام جعفان ہے۔ وہ اکلوتا ہم سب کا پیارا اور راج دلارا بلکہ آنکھوں کا تارا ہے تو بے جانا ہوگا۔ اسے اپنے گھر میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ یہاں شہزادوں کی مانند راج کرتا تھا، یہاں کے نامی گرامی زمیندار کا بیٹا اور اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ سچ یہ ہے کہ انسان کسی حال میں مطمئن اور خوش نہیں رہتا، مگر وہ بھی جانے کیوں اپنے گھر سے مطمئن نہ تھا۔ وہ طالب علم تھا اور اس کا کام بس تعلیم حاصل کرنا تھا، مگر یہاں تعلیم حاصل کرنا فضول بات سمجھتا تھا۔ دراصل وہ میدانی علاقے میں جا کر پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں کی پڑھائی میں جان نہیں ہے اور نہ ہی اچھے اساتذہ ہیں، مجھے یہاں نہیں پڑھنا، بلکہ کسی بڑے شہر کے بڑے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھ کر ترقی کرنا ہے۔ بھلا اس سنسان پہاڑی علاقے میں کیوں کر ترقی کر سکتا ہوں؟ بس ترقی کے خواب دل میں سجائے میرا بھائی اپنی خوبصورت اور ہری بھری جنت سے نکلا، اور زمانے کی تلخی اور ٹھوکروں کا شکار ہو کر حالات کی کانٹوں بھری وادی میں جا گرا۔ میرے بھائی کا نام تو جعفان ہے، تو آگے کی داستان بھائی سے سنیے۔ اس وقت گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور چاند کہیں بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان تھے۔ چاروں طرف اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا، البتہ کہیں دور کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز کانوں میں آ جاتی تو مردہ رات میں زندگی کا احساس جاگ جاتا تھا۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا، نہ جانے کون سا غم تھا جو مجھے ایسے جلا رہا تھا جیسے میں نے کوئی خطا کی ہے اور اب پچھتاوے کی آگ میں پوری طرح جھلس رہا ہوں۔ ماضی کی ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو کسی بات کی فکر نہیں تھی، سبھی مجھ سے پیار کرتے تھے، تبھی ماں باپ کے پیار نے مجھے مغرور کر دیا تھا۔ مگر جب زندگی کی سختیوں کا ادراک ہوا تو سارا غرور بھرے پہاڑ کی مانند گرنے لگا، اور زندگی کو کسی سخت چٹان سے ٹکرانے کو دل چاہنے لگا۔ آرام دہ زندگی نے ایسا آرام طلب بنا دیا تھا کہ کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ سوتا تو اٹھنے کی سخت نہ ہوتی، بیٹھ جاتا تو کھڑے ہونے میں دقت محسوس ہوتی۔ یہ عیش پرستی کا نتیجہ تھا، کیونکہ خوشحالی تھی اور کرنے کو کوئی کام نہیں تھا پڑھائی کے سوا، اور پڑھائی کے معیار سے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اسلام آباد راولپنڈی کے تعلیمی ادارے دیکھوں، کراچی کے تعلیمی اداروں میں نام لکھوا دوں۔ لگتا تھا کہ میں اپنے اس قیمتی اور سنہرے وقت کو کھو رہا ہوں۔ بزرگ سمجھاتے کہ اپنے شہر میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کرو، اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، مگر میں جلد از جلد یہ پنجرا توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے وہ شکستہ آنسو یاد ہیں جب میں منع کرتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی نظروں سے دور جاؤں۔ بہن ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی، بھیا پردیس نہیں جانا، ہم تمہارے بغیر کیا کریں گے؟ والد نے مجھے بار بار سمجھایا، بیٹا یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کھاتے پیتے ہو، سب رشتہ دار تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آرام سے پڑھو اور جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اپنے گھر کی مٹی میں بہت وزن ہوتا ہے، باہر نکلنے سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، مگر مجھ پر تو بڑے شہر جا کر ترقی کرنے کا بھوت سوار تھا۔ میرا خیال تھا کہ چھوٹے شہر میں رہ کر آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب میں نے پوری طرح بوریا بسترا باندھ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تو امی نے جا کر بزرگوں سے کہا کہ مجھے روکو۔ تب خاندان کے کچھ بزرگ بھی مجھے سمجھانے آئے، مگر میں کب بڑوں کی سنتا تھا۔
जो इनकी मानता। मेरी उम्र ही कितनी थी, मैं 17-18 बरस का नौजवान था जिसके अपने जज्बात थे। मैं इन बुजुर्गों की उम्र के मुताबिक तो नहीं सोच सकता था। बस फिर मैंने अपना गांव ही छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस रात मुझे जाना था मुझे नींद नहीं आ रही थी, हवाओं और पत्तों से साई साई करती हुई चल रही थी। ये रमजान का महीना था। जब सब सो गए तो मैं उठ बैठा और सोचा अब क्या करना चाहिए, शहर कैसे जाऊं। रकम तो जेब में नहीं। फिर याद आया कि कल अब्बा जान ने अम्मी को कुछ रकम दी थी जो उन्होंने मेरे सामने अपने संदूकी में रख दी थी। मैं वो रकम निकाल कर घर से निकल गया। अपनी तालीमी स्नात मैंने पहले ही एक बैग में रख ली थी। बैग उठाकर मैं माँ की चारपाई की तरफ गया। इनके होंठ दिए की मदहम रोशनी में हिल रहे थे, गोया मेरी हिफाजत की दुआ मांग रहे थे। मैंने कल विदाई नज़र सब पर डाली और घर से निकल गया। अभी सुबह नहीं हुई थी। चलते चलते मैं हाईवे पर आ गया जो घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। किसी परिंदे या इंसान की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। बस सुबह की ठंडी हवा के झोंके मेरे बालों को छूकर गुजर रहे थे और मेरे चेहरे को खुशगवार अंदाज से थपथपा रहे थे। वो मुझको परदेश जाते हुए गालिबन खुदा हाफिज कह रहे थे। जब मैं रोड पर पहुंचा तो सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। परिंदों की दिलकश और सुरीली आवाज़ों ने दिल में सुकून की कैफियत भर दी थी। एक तरफ ये डर था कि कहीं वालिद साहब को पता ना चल जाए कि मैं घर छोड़कर निकल आया हूँ, वो मुझे पकड़ने आ जाते। दूसरी तरफ जिस गाड़ी का बेचैनी से इंतजार था, इसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। खुदा खुदा करके वो कोच आई जिस पर मुझे सवार होना था। मैंने शुक्र अदा किया, गाड़ी को रोका, आखिरी बार अपने गांव पर हमसदा दिल से निगाह डाली और जल्दी से इसमें सवार हो गया। तकरीबन 1 घंटे में मेरे गांव से गाड़ी शहर पहुंच गई। जल्दी से मैं बस स्टॉप की तरफ रवाना हुआ और टिकट खरीद लिया। उन्होंने दोपहर 1 बजे वाली गाड़ी का टिकट दिया तो मैं कैफ़े में जाकर बैठ गया। मुसाफिरों के लिए कैफ़े खुला था। ऊपर पर्दा पड़ा था मगर अंदर जाके मिल रही थी। मैंने सहरी नहीं की थी, इसलिए रोज़े की नीयत भी नहीं की थी। लिहाजा मैंने चाय पी ताकि कुछ हवास बहाल हो। फिर मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी में बैठ गया और जब शहर पहुंचा तब होश आया कि अब गाड़ी से उतरना है। गाड़ी से उतरकर मैं चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्योंकि यहाँ मैं अजनबी था। कई लोग अपने अपने अजीज़ों के साथ थे, मैं अकेला खड़ा था। मुझे खुश आमदीद कहने वाला कोई न था और ना खुदा हाफिज कहने वाला। खुदा पर तवक्कल करके मैं एक और गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर अपनी सोचों में गुम रहा कि मेरी बराबर वाली नशिस्त पर एक मोअज़्ज़िज़ और बाएहतराम शख्स आकर बैठ गया। इसका चेहरा रोशन और हशाश बशाश था। इसे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि इस्लामाबाद बोर्ड का काम है। ऐसे पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने अपने गांव का नाम बताया तो उसने कहा कि वो मेरे गांव के साथ वाले गांव का रहने वाला है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। इससे मेरी मदद का यकीन दिलाया तो मुझे सुकून मिल गया। जब हम एक जगह उतरे, इस शख्स ने टैक्सी ली, मुझे साथ बिठाया और हम एक बाल टाउन पहुंचे जहाँ इसका घर था। वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। इन लोगों ने मेरी आओ भगत की, खाना खिलाया। इस मोअज़्ज़िज़ आदमी ने मुझे मशवरा दिया कि बैठो, तुम थक गए हो, आराम करो। सुबह तुम्हारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए चलेंगे। अगली सुबह चाचा महमूद के साथ हम बोर्ड गए, जहाँ अपने दोस्त के तवस्सुत से उन्होंने मेरा काम करवा दिया। रात को चचा महमूद मुझे स्टेशन छोड़ने आए और चनाब एक्सप्रेस में बिठा दिया। गाड़ी 9 बजे शब रवाना हुई। कराची में मेरा एक दोस्त नदीम रहता था और एक कज़न भी। इसके अलावा किसी और का पता मेरे पास नहीं था। जब गाड़ी स्टील मिल क्रॉस करने लगी तो मेरे साथ बैठे मुसाफिर ने पूछा कि भाई आपने कराची में कहाँ जाना है? मैंने बताया कि पुराना हाजी कैंप, वहाँ मेरा कज़न काम करता है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। इसने तसल्ली दी कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैंट स्टेशन पर मुसाफिर गाड़ी से उतरने लगे। जब मैं अपने हमसफ़र के साथ उतरा तो एक अजीब सी घबराहट तारी हो गई। कहाँ वो छोटी सी जगह और कहाँ ये इतना बड़ा शहर। मैं लोगों के अज़दहाम को देखकर दंग रह गया। आखिर हम स्टेशन से निकल आए और पुराने हाजी कैंप जाने वाली वैगन में बैठ गए।
मुझे ये शहर अजीब सा लग रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, कुशादा सड़कें और बेपनाह रश। पहाड़ों का कहीं नामो निशान तक ना था। जब हम हाजी कैंप पहुंचे तो वो अजनबी मुझे खुदा हाफिज कहकर चला गया, क्योंकि वो सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आया था, वरना इसे तो करंग ही जाना था। मैं अपने गिरदो पेश को देखकर हैरान और परेशान था कि अब क्या करूं। कोई जान पहचान ना थी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी। सब अपने कामों में मसरूफ थे, किसी को किसी से वास्ता ना था। मैंने अपने कज़न मादिर भाई को तलाश करने के लिए तमाम दुकानदारों से इसके बारे में पूछा, मगर सब ने लाइल्मी का इजहार किया। दिन भर ऐसे ही ठोकरे खाता रहा। जब बहुत थक गया तो एक पान वाले से पूछा कि भाई कोई होटल मिलेगा। इसने करीब ही एक होटल का पता बताया। मैं वहां पहुंचा, मैनेजर को रकम दी तो इसने कमरे की चाबी दे दी। रात हो चुकी थी। मैं थकन से चूर बिस्तर पर गिरा और सो गया, ये सोचकर कि कल की फिक्र कल करूंगा, आज तो सो लूं। सुबह जब आंख खुली तो दीवार पर नजर पड़ी। वहां लिखा था कि मैं 25 अगस्त को घर से भागकर कराची आया था। यहाँ आते ही जेब कट गई। शुक्र है कुछ रकम अलहदा से बैग के अंदरूनी हिस्से में रखकर सी ली थी। एक माह कराची में ठोकरे खाता रहा, मगर कोई नौकरी ना मिली। अब मैं बहुत उदासी के साथ वापस गांव जा रहा हूँ। अगर कोई मेरी तरह है तो ताकीद है कि वो कराची की तलखियां बर्दाश्त करने से पहले गांव लौट जाए। इसमें इसका और इसके माँ बाप का भला है, फकत कुल पेशावरी। ये पढ़कर मुझे अपना वाकया याद आ गया। चूंकि मैं भी इसी तरह घर से भाग कर आया था, लेकिन अभी तक किसी नुकसान का सामना नहीं हुआ था। बहरहाल नाश्ता करके मैं वैगन में बैठकर दोबारा कादिर भाई की तलाश में निकल गया। इत्तेफाक से एक पुराना क्लास फेलो मिल गया। मैं इतना खुश हुआ जैसे दुनिया जहां की दौलत मिल गई हो। बढ़कर गले से लगा और अपनी सारी बिपता सुनाई तो उसने तसल्ली दी और कहा कि वो कादिर भाई को जानता है, कहाँ रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, चलो आओ। वो मुझे लेकर मेरे कज़न के पास आया। अब मेरी खुशी दो चंद हो गई और सुकून मिला कि मैं बेआसरा नहीं हूँ। मैं कादिर भाई के साथ होटल आया, बिल अदा किया और बैग उठाकर इनके साथ चला आया। रमज़ानुल मुबारक के 10 रोज बाकी थे। कादिर भाई ने कहा कि गुलशन, तुम अभी आराम करो, ईद के बाद तुम्हारे लिए नौकरी तलाश करूंगा। ईद के बाद उन्होंने मार्केट में एक दुकान पर मुझे काम दिलवा दिया। फिर रिहाइश का मसला भी हल कर दिया और मेरे घर वालों को खत लिखा कि फिक्र ना करें, गुलशेर मेरे पास है। एक हफ्ते में वालिद साहब का जवाब मौसूल हुआ। उन्होंने लिखा कि अजीज, तुम खुद सोचो, जिस तरीके से हमें छोड़कर गए हो, हमने जान लिया है कि तुमने माँ बाप को कुछ नहीं समझा। बचपन से अब तक जिस तरह लाड प्यार से तुम्हें पाला और तुमसे जो उम्मीदें वाबस्ता की, तुमने इन सबको खाक में मिला दिया। बस ऐसे ही दिल गिरफ्तार बातें थी जिनसे सफहात भरे हुए थे। खत पढ़कर मेरे आंसू बहने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। अब तो मैं इनसे मीलों दूर आ चुका था। एक माह काम किया, फिर किसी वजह से सेठ नाराज हो गया तो मैंने काम छोड़ दिया और कादिर भाई के साथ काम पर लग गया। मगर इनका सेठ और भी सख्त था, बात बात पर तनख्वाह काट लेता। मैंने एक माह बाद वो काम भी छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे माहौल से मैं कब आशना था। फिर एक मशहूर बर्गर कंपनी में नौकरी मिली, मगर यहाँ तनख्वाह बहुत कम थी। 8 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। जब पहले दिन ड्यूटी ख़त्म करके जाने लगा तो ऑर्डर मिला कि बर्तन और फर्श भी धोकर जाना है। ये सुनकर जैसे बिजली मुझ पर गिर गई। बेख्तियार आंसू बहने लगे। वालदेन के घर तो तिनका भी नहीं उठाया था और आज तकदीर, बल्कि अपनी कमअक्ली की वजह से बर्तन धोने पर मजबूर होना पड़ा। अब क्या कर सकता था, ये काम भी करना ही पड़ा। इस दिन से तौबा कर ली कि आइंदा किसी काम को हकीर नहीं समझूंगा। ऐसे छोटे मोटे काम करके भी जेब खाली रहती थी। तनख्वाह इतनी कम थी कि बामुश्किल एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो पाता। फिर भी हर माह कर्जा चढ़ता जा रहा था। घर से खर्चा किस मुंह से मांगता। एक दिन खाने को कुछ मिलता तो अगले दिन फाका करना पड़ता। रोज बरोज मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कभी जो चेहरा गुलाब की तरह खिलखिला होता था, वो जर्द और पुरमस्ता हो चुका था। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। गांव में फल देखकर दिल नहीं ललचाता था, हालांकि हर तरफ ढेर लगे होते थे। और यहाँ जब दुकानों और ठेलों पर फल देखता तो दिल ललचा जाता, मगर खरीदने की इस्तात ना थी।
जब सर्विस पर जाता तो कॉलेज से लेट हो जाता, और अगर कॉलेज वक्त पर जाता तो ड्यूटी से लेट होता, फिर तनख्वाह से पैसे कट जाते। इन उलझनों ने जहन को मफलूज कर दिया था। मैं बहुत शिकस्ता दिल होकर काम कर रहा था। एक दिन बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा। सोचा आधा दिन काम करके छुट्टी मांग लूंगा। दोपहर 12 बजे मैनेजर से दरख्वास्त की तो इसने बदतमीजी से बात की और मेरी मजबूरी पर रहम करने के बजाय मुझे नौकरी से निकाल दिया। जो काम मैं पहले कर चुका था इसकी उजरत भी जब्त कर ली और सख्त बेइज्जती के साथ दफ्तर से निकाल दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, भारी कदमों से सड़क पर चल रहा था और जहन में माँ बाप की शफीक सूरतें गर्दिश कर रही थी। सोच रहा था अगर बड़ों की बात मान लेता तो आज इस कदर ख्वार ना होता। जख्मी हिरन की तरह लड़खड़ाता हुआ एक पार्क में जा पहुंचा और एक झाड़ी के नीचे दबक कर आंसू बहाने लगा। इतना रोया कि हिचकियां बन गई। अचानक मेरे जहन में अपने गांव के एक जानने वाले का ख्याल आया जो अब चौकी में टाइल्स की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। मैं इसी वक्त वहां गया, इसे दिलासा दिया और वादा किया कि वो मेरी नौकरी के लिए पूरी कोशिश करेगा। तब मुझे कुछ ढारस मिली और मैं अपने किराए के कमरे में आकर लेट गया। इस रात मुझे नींद नहीं आई। करवटें बदलते सुबह हो गई। दिन भर कहीं ना निकला। शाम 6 बजे एक दोस्त आया और बताया कि तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो गया है। यह सुनकर कुछ सुकून मिला। सोचा चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम खाने पीने का खर्च तो निकलेगा। अब मैं फैक्ट्री में मोहब्बत और शफकत के साथ काम करने लगा। सुबह तड़के से शाम 5 बजे तक मेहनत करता, फिर शाम को कॉलेज जाता और रात 9-10 बजे वापस आता। इसके बाद रात 2-3 बजे तक पढ़ता रहता। जून में नौकरी को खैरबाद कह दिया क्योंकि इम्तिहानात सर पर थे और पेपर्स देने थे। 1 साल बाद घर से खत आने लगे कि वापस आ जाओ। वालिदैन की इल्तिजाएं, बहन की मिन्नत समाजत ने मजबूर कर दिया और एक दिन मैंने अपने गांव लौट जाने का तहैया कर लिया जहां से आंसू बहाकर निकला था। वो दिन भी आ गया जब मैं वापस अपने खूबसूरत गांव पहुंचा। ठंडी साफ सुथरी पालेहाना हवाएं और पानी की तेज धारें गुनगुनाकर मेरा इस्तकबाल कर रही थी। गांव की सरजमीन पर कदम रखते ही मेरे आंसू बहने लगे। जाने वो खुशी के आंसू थे या निदामत के। शाम के 5 बजे थे जब मैंने पहाड़ों के दरमियान वाक़े अपने पत्थरों से बने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वालिदैन दरवाजे पर आ गए। मुझे देखकर माँ धाड़े मारकर मेरे गले लग गई। बाप और बहन भी रो रहे थे। मैं माँ बाप के कदमों में गिर गया। आज मालूम हुआ कि जालिम दुनिया की बेरहमी से बचाने वाली हस्तियां सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपना सुकून कुर्बान करके औलाद को सुकून देते हैं, मगर औलाद को इसका एहसास देर से होता है। मैंने वालिदैन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, दोबारा गिलगित में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ जो सुकून था वो और कहीं ना था। अब मैं हर लड़के को यही नसीहत करता हूँ कि भाई अपने घर का सुकून छोड़कर कभी ना जाना। अगर जाना ही हो तो वालिदैन की मर्जी और दुआओं के साथ जाना ताकि तुम दर बदर ना फिरो। मेरे भाई ने यह सब कुछ देकर सबक सीखा, तालीम हासिल की, फिर खेती बाड़ी संभाल ली और अपने फ्रूट के बागात की देखभाल करके खूब रुपया कमाने लगा। अम्मी अब्बू ने भाई की पसंद से इसकी शादी भी कर दी। आज भाई अपने घर में खुश है और परदेश के नाम से भी कान को हाथ लगा लेता है। कहता है सच है, अपने घर में इज्जत है, बाहर तो आदमी तिनके से भी हल्का हो जाता है। भाई की कहानी सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि परदेश को परदेश क्यों कहा जाता है और ये कि परदेश की पूरी अपने देश की आधी से भी बदतर है। आजकल हमारे नौजवान लाखों रुपए देकर गैर कानूनी तरीके से दरिया गैर जाते हैं, जान गिनवा बैठते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं या खाली हाथ वापस आते हैं। क्या ये बेहतर नहीं अगर जाना हो तो जायज़ तरीके से हुनर सीखकर बाइज्जत तरीके से जाएं, वरना परदेश ना जाएं, क्योंकि अपना देश ही भला है